রাজ্যে জারি করা হলো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। নির্বাচনী আচরণ বিধি নিয়ে শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্তের গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। নগদ টাকা নিয়ে চলাফেরা করতে হলে মানতে হবে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুসার। 24 ঘন্টার মধ্যেই সরকারি সম্পত্তি থেকে ব্যানার অপসারণের নির্দেশ। 48 ঘন্টার মধ্যেই পাবলিক পেজ থেকে ব্যানার নামাতেই হবে। আজ থেকেই এফএসটি ও এসএসটি টিমের টহল শুরু হয়েছে গোটা এলাকায়। রাজনৈতিক ব্যানারে প্রিন্টার ও পাবলিশারের নাম থাকা বাধ্যতামূলক। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলায় অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব ধরনেরই প্রস্তুত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। রবিবার সন্ধ্যায় জেলা আয়ুক্তের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক এমনটাই জানানো হয়। নির্বাচন কমিশন বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শ্রীভূমি জেলা জুড়ে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট জারি করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জেলার সমস্ত সরকারি দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি ও জনসাধারণের সম্পত্তিতে থাকা রাজনৈতিক প্রচারের যাবতীয় চিহ্ন দ্রুত অপসারণ করতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি ভবন, অফিস প্রাঙ্গণ বা অন্যান্য সরকারি সম্পত্তিতে থাকা সব ধরনের পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স ও দেওয়াল লিখন নির্বাচনী ঘোষণার 24 ঘন্টার মধ্যেই সরিয়ে ফেলতে হবে। একইভাবে জনসাধারণের সম্পত্তি যেমন রাস্তা, বিদ্যুতের খুঁটি, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড ও সরকারি যানবাহনে লাগানো রাজনৈতিক প্রচার সামগ্রী 48 ঘন্টার মধ্যেই অপসারণ করতে হবে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে লাগানো রাজনৈতিক প্রচার সামগ্রী আইন অনুযায়ী 72 ঘন্টার মধ্যেই সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জানানো হয়েছে, আজ থেকে জেলায় এফএসটি ও এসএসটি টহল শুরু করেছে। নগদ অর্থ নিয়ে চলাফেরা বা বড় অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলতে হবে বলে সতর্কবার্তাও করা হয়েছে। असम की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए सामान्य निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और घोषणा होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी आज शाम 4 बजे से लागू हो गई है। 3-4 चीजों के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली एम्फेसिस देना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें जनरल हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीभूमि माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो कानून की न्याय संगत धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और जिला प्रशासन ये इंश्योर करेगा, ये निश्चित करेगा कि उनके ऊपर न्याय संगत एक्शन हो। 3-4 चीजों के ऊपर मैं स्पेसिफिकली आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा, स्पेशली प्रेस का। सेक्शन 176 ऑफ बीएनएस, पुराना 171H आईपीसी का और अभी नया सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 176 दैट रिलेट्स टू इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। मैं आपके सबके नॉलेज के लिए पढ़ देता हूं। Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 500 rupees। मतलब बिना इलेक्शन
जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसी चीज में पैसा खर्च करता है जो कि उस कैंडिडेट को डायरेक्ट बेनिफिट करेगा, उसके चुनाव को प्रभावित करेगा, तो उस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की धारा 176 के तहत कार्यवाही की जाएगी और फिर कोर्ट जो सजा तय करेगा निर्धारित धाराओं में हो। Provided that if any person having incurred any such expense not exceeding the amount of 10 rupees without authority obtains within 10 days from the day on which such expense were incurred by the approval in writing of it shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate। मतलब कोई भी व्यक्ति 10 रुपए तक का एक्सपेंडिचर कर सकता है बिना कैंडिडेट की परमिशन के उस कैंडिडेट के फेवर में, प्रोवाइडेड वो बाद में विद इन 10 डेज उस कैंडिडेट से अप्रूवल ले ले। ठीक है, 500 रुपए बोला, ये फाइन का लिमिट 10,000 रुपीज हो गया है। ठीक है, बिना इलेक्शन मतलब बिना कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट की इजाजत के कैंडिडेट के पक्ष में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि कोई खर्च करे, और अगर किया है तो उसका लिमिट है 10 रुपए। 10 रुपए तक अगर खर्च किया है तो वो आप 10 दिन के अंदर उस कैंडिडेट से की परमिशन लेकर रेगुलराइज करा सकते हैं, और अगर आपने ऐसा इससे 10 रुपए से ज्यादा किया है तो रेगुलराइज नहीं होगा। बीएनएस की धारा 176 के तहत कार्यवाही होगी और उसमें 10,000 रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लग सकता है। दूसरा एक चीज आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं मैं, सेक्शन 127A ऑफ आरपीए, नहीं सेक्शन 77 ऑफ आरपीए। सेक्शन 77 ऑफ आरपीए क्या होता है? एवरी कैंडिडेट एट एन इलेक्शन shall either by himself or by his election agent keep a separate and correct account of all expenditure in connection with election incurred or authorized by him or by his election agent and the date of declaration। इसमें क्या है, हर कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी है कि या तो वो खुद या अपने एजेंट के थ्रू चुनाव में उसने जितना खर्च किया है उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गिवन फॉर्मेट्स हैं उन फॉर्मेट्स में उसका प्रॉपर अकाउंट रखे, या तो खुद रखे या इलेक्शन एजेंट से रखवाए। किस दिन से? जिस दिन से वो कैंडिडेट बनता है। कैंडिडेट किस दिन से बनता है? जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल करता है। ठीक है, द डेट विच ही हैज बीन नॉमिनेटेड, मतलब उसका फॉर्म 7A में नाम आता है, उस दिन वो नॉमिनेटेड हो जाता है। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट का लिस्ट निकलता है जिस दिन, उस दिन से वो नॉमिनेटेड माना जाता है। उस दिन से लेके जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है उस कैंडिडेट को खुद या अपने इलेक्शन एजेंट के माध्यम से सारे खर्चों का हिसाब किताब रखना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, हम आपको दे देंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें माफ हैं जो उसके कैंडिडेट के उसमें नहीं आती हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो आती हैं। जैसे अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी अपना ट्रेवल में एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल सब करता है, दैट इज नॉट काउंटेड। चीजें हैं आप लोगों को। आरपीए एक्ट का सेक्शन 127A, ये भी जनरल पब्लिक के लिए है। यह है, नो पर्सन शेल प्रिंट और पब्लिश or cause to be printed or published any election pamphlet or poster which does not bear on it face the name and address of the printer and publisher thereof। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का किसी इलेक्शन के काम के लिए किसी एजेंट, किसी इलेक्शन कैंडिडेट के फेवर में कोई पैम्पलेट, पोस्टर या कुछ भी बनाता है तो उसमें प्रिंटर का नाम और पब्लिशर का नाम होना मैंडेटरी है। और नाम कहां होगा? प्रथम पेज में मुख्य पृष्ठ पे यानी फेस पे होना जरूरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। तो सारे मेरे क्योंकि मीडिया हाउस के थ्रू इसका भी आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो आइडेंटिटी ऑफ द पब्लिशर देयर ऑफ साइंड बाय हिम एंड अटेस्टेड बाय 2 पर्सन फ्रॉम होम ही इज पर्सनली नोन
इज डिलीवर्ड बाय हिम टू द प्रिंटर इन डुप्लीकेट। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्शन मटेरियल जो कैंडिडेट के द्वारा प्रिंट किया जाएगा उसमें प्रिंटर का डिटेल्स होना मैंडेटरी है। ये 3 स्पेसिफिक चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी जो जनरल एनसीसी गाइडलाइंस हैं, आज से जिले में धारा 163 बीएनएसएस का लागू हो जाएगा शाम 4 बजे से। उसके डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई भी अनऑथराइज असेंबली आज से इलीगल है। कैरिंग ऑफ आर्म्स यानी कि किसी भी तरह का बंदूक, शस्त्र, ये सब कैरी करना आज से इलीगल है, अदर देन द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ कोर्स। ऑर्डर में जो लोगों को एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड लोग कौन कौन से होते हैं? एग्जेम्प्टेड लोगों में पुलिस, सीएपीएफ, बैंकों में जो गार्ड्स हैं, जो बेसिकली एसेंशियल सर्विसेज में हैं, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। किसी भी तरह का कैश एक लिमिट से ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना भी इलीगल है। इनफैक्ट एटीएम्स के लिए भी बैंक से जो कैश जाएगा दैट इज टू बी मूव्ड ड्यूरिंग डे टाइम विद अ वैलिड क्यूआर कोड। आज से हमारी एफएसटी और एसएसटी की टीम्स जगह जगह पे इंस्टॉल कर दी गई हैं। मेरा आम जनता से ये प्रार्थना है कि आप सब लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो आचार संहिता का है उसको ध्यान में रखें। किसी भी तरह की असेंबली, किसी भी तरह की मीटिंग करने से पहले ड्यू परमिशन लें, और कैश मूवमेंट विदाउट परमिशन परमिटेड नहीं है। बियॉन्ड द लिमिट विल बी स्पेसिफाइड। और भी बहुत सारे गाइडलाइंस उस समय पे आपको देखते रहेंगे। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस।